पार्ट 2। रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नवीकरणीय और गैर-नवीकरणीय संसाधन। A second way of categorizing natural resources could be based on whether they are renewable or not. प्राकृतिक संसाधनों को वर्गीकृत करने का दूसरा तरीका इस आधार पर हो सकता है कि वे नवीकरणीय हैं या नहीं। A general principle of nature is that it functions in a restorative and regenerative way. Restoration is the process of returning something to its original healthy state if it has been degraded or damaged. Nature heals, renews and maintains herself over time. A cut on your skin will normally heal, a forest recovers after a wildfire. Regeneration goes beyond restoration. It is about nature's ability to create new life and the conditions for thriving. We plant trees in areas that may have lost them on account of human interventions like clearing forests for housing. Planting the types of trees that were originally growing there restores the ecosystem. The trees provide food and shelter for birds, squirrels, and other creatures, enabling life to return. Nature works in cycles where there is no waste. Take a forest. Let's say a tree falls in the forest. It decomposes with the bacteria, fungi, and insects feeding on it. The tree becomes part of the soil, enriching it. New trees and plants grow from seeds, eventually some will fall, and the cycle starts again. These are examples of nature's principle of restoration and regeneration in practice. यह पैराग्राफ हमें समझा रहा है कि प्रकृति का एक सामान्य सिद्धांत यह है कि यह पुनर्स्थापना और पुनर्जनन के तरीके से कार्य करती है। पुनर्स्थापना वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा किसी वस्तु को, यदि वह खराब या क्षतिग्रस्त हो गई हो, तो उसकी मूल स्वस्थ अवस्था में वापस लाया जाता है। प्रकृति समय के साथ स्वयं को ठीक करती है, नवीनीकृत करती है और बनाए रखती है। त्वचा पर लगा घाव सामान्यतः ठीक हो जाता है, जंगल आग लगने के बाद फिर से हरा भरा हो जाता है। पुनर्जनन पुनर्स्थापना से कहीं अधिक व्यापक है। यह प्रकृति की नई जिंदगी और उसके फलने फूलने के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने की क्षमता से संबंधित है। हम उन क्षेत्रों में पेड़ लगाते हैं जहां मानव हस्तक्षेप, जैसे कि आवास के लिए जंगलों की कटाई के कारण पेड़ नष्ट हो गए हों। वहां मूल रूप से उगने वाले पेड़ों को लगाने से पारिस्थितिकी तंत्र बहाल होता है। पेड़ पक्षियों, गिलहरियों और अन्य जीवों को भोजन और आश्रय प्रदान करते हैं, जिससे जीवन की वापसी संभव होती है। प्रकृति एक चक्र में चलती है जिसमें कोई अपशिष्ट नहीं होता। एक जंगल का उदाहरण लीजिए। मान लीजिए जंगल में एक पेड़ गिरता है। वह बैक्टीरिया, कवक और कीड़ों द्वारा खाए जाने पर विघटित हो जाता है। पेड़ मिट्टी का हिस्सा बन जाता है और उसे समृद्ध करता है। बीजों से नए पेड़ और पौधे उगते हैं। अंततः कुछ पेड़ गिर जाते हैं और चक्र फिर से शुरू हो जाता है। ये व्यवहार में प्रकृति के पुनर्स्थापन और पुनर्जनन के सिद्धांत के उदाहरण हैं। रिन्यूएबल रिसोर्सेस। नवीकरणीय संसाधन। Renewable resources exhibit these characteristics over time. Most of India has abundant sunshine. In the natural course, rivers are fed regularly by rain and melting glaciers, forests renew themselves, soil replenishes itself through natural processes, and so on. Solar energy, wind energy, energy from flowing water, timber from forests are renewable resources as long as we are able to manage them in a sustainable manner. However, for them to remain renewable, there is a condition: the natural rhythm of restoration and regeneration must not be disturbed. If we harvest timber faster than the forest can grow trees, we will eventually deplete the forest. Scientists have shown that through irresponsible human actions,
Many of nature's cycles have been disturbed. A combination of several factors interacting, fossil fuel-driven industrialization and the cutting down of forests for agriculture and other purposes are two of them, has led to rising temperatures that we are experiencing on account of this. The glaciers in some places in the Himalayas are melting at a rate faster than precipitation can replace them. This has implications on water security for the populations living in the plains dependent on the water tower. यह पैराग्राफ हमें समझा रहा है कि नवीकरणीय संसाधन समय के साथ ये विशेषताएं प्रदर्शित करते हैं। भारत के अधिकांश भाग में प्रचुर मात्रा में धूप उपलब्ध है। प्राकृतिक रूप से नदियां बारिश और पिघलते ग्लेशियरों से नियमित रूप से पोषित होने के कारण जंगल स्वयं को नवीनीकृत करते हैं। मिट्टी प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से स्वयं को पुनः भरती है और इसी तरह सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बहते पानी से प्राप्त ऊर्जा, जंगलों से प्राप्त लकड़ी नवीकरणीय संसाधन हैं, बशर्ते हम उनका प्रबंधन टिकाऊ तरीके से कर सकें। हालांकि इनके नवीकरणीय बने रहने के लिए यह आवश्यक है कि इनके प्राकृतिक पुनर्स्थापन और पुनर्जनन की लय को बाधित न किया जाए। यदि हम वनों के वृक्षों के विकास की दर से अधिक तेजी से लकड़ी काटते हैं तो अंततः वन समाप्त हो जाएंगे। वैज्ञानिकों ने सिद्ध किया है कि मानव की गैरजिम्मेदार गतिविधियों के कारण प्रकृति के अनेक चक्र बाधित हुए हैं। जीवाश्म ईंधन आधारित औद्योगीकरण और कृषि एवं अन्य उद्देश्यों के लिए वनों की कटाई जैसे कई कारकों के परस्पर क्रिया करने से तापमान में वृद्धि हुई है। इसी कारण हिमालय के कुछ क्षेत्रों में हिमनद वर्षा की तुलना में अधिक तेजी से पिघल रहे हैं। इसका प्रभाव जल सुरक्षा पर पड़ता है, खासकर उन मैदानी क्षेत्रों में रहने वाली आबादी के लिए जो जल स्रोतों पर निर्भर हैं। डोंट मिस आउट, इसे चूके नहीं। Traditionally, communities had a system of regulating or refraining from fishing during the spawning season to enable the maintenance of the fish population. However, the commercialization of fishing resulted in overfishing. In the case of a type of fish called tuna, for example, the rapid and extensive decline in their population led to some agreements on control of fishing. Nevertheless, this important type of fish that keeps the ocean ecosystem in balance by consuming smaller fish, shrimps, etc., is on a decline. Do you know of other traditional practices that help the ecosystem to stay in balance? यह पैराग्राफ हमें कह रहा है कि परंपरागत रूप से समुदायों में मछली की आबादी को बनाए रखने के लिए प्रजनन के मौसम के दौरान मछली पकड़ने को नियंत्रित करने या उससे परहेज करने की व्यवस्था थी। हालांकि मछली पकड़ने के व्यवसायीकरण के कारण अत्यधिक मछली पकड़ने की समस्या उत्पन्न हुई। उदाहरण के लिए, टूना नामक मछली की आबादी में तेजी से और व्यापक गिरावट के कारण मछली पकड़ने पर नियंत्रण के लिए कुछ समझौते हुए। फिर भी यह महत्वपूर्ण मछली, जो छोटी मछलियों, झींगों आदि का सेवन करके समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखती है, की संख्या में गिरावट आ रही है। क्या आप अन्य ऐसी पारंपरिक प्रथाओं के बारे में जानते हैं जो पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित रखने में मदद करती हैं? We need industries to produce the goods we consume. The process also creates wastes that are frequently discharged into rivers and other water bodies. Often, these wastes cannot decay to become the food of some life form. Instead, it leads to a disturbance in nature's cycle of restoration and regeneration, leading to a situation where the river becomes poisonous and cannot support life. यह पैराग्राफ कह रहा है कि हमें उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन के लिए उद्योगों की आवश्यकता होती है। इस प्रक्रिया में अपशिष्ट पदार्थ भी उत्पन्न होते हैं, जिन्हें अक्सर नदियों और अन्य जल निकायों में बहा दिया जाता है। अक्सर ये अपशिष्ट पदार्थ सड़कर किसी जीव जंतु का भोजन नहीं बन पाते।
इसके बजाय यह प्रकृति के पुनर्स्थापन और पुनर्जनन के चक्र में बाधा उत्पन्न करता है, जिससे नदी विषैली हो जाती है और उसमें जीवन का अस्तित्व समाप्त हो जाता है। लेट्स एक्सप्लोर। आइए ढूंढते हैं। Identify human actions in your surroundings that result in nature losing her ability to restore and regenerate. What types of interventions can be undertaken to restore nature's cycle? यह पैराग्राफ हमें कह रहा है कि अपने आसपास के उन मानवीय कार्यों की पहचान करें जिनके कारण प्रकृति अपनी पुनर्स्थापन और पुनरुत्पादन की क्षमता खो रही है। प्रकृति के चक्र को बहाल करने के लिए किस प्रकार के उपाय किए जा सकते हैं? डोंट मिस आउट। इसे चूकें नहीं। Ecosystem functions and ecosystem services. Nature has some inherent ways of working. For example, trees naturally produce oxygen. When these natural processes benefit humans, we call them ecosystem services. We can think of it like this: a forest naturally filters water, prevents soil erosion, and provides habitat for animals. These are ecosystem functions. When we benefit from clean water, protected farmland, and pollinated crops because of that forest, we are receiving ecosystem services from nature. A mature tree produces about 275 liters of oxygen per day. This varies a little depending on the type of tree. A human being needs about 350 liters of oxygen every day. This can change based on the type of activity that an individual engages in, their height and weight, and so on. यह पैराग्राफ कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य और पारिस्थितिकी तंत्र द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं प्रकृति के कुछ अंतर्निहित कार्य करने के तरीके हैं। उदाहरण के लिए, पेड़ स्वाभाविक रूप से ऑक्सीजन का उत्पादन करते हैं। जब ये प्राकृतिक प्रक्रियाएं मनुष्यों को लाभ पहुंचाती हैं, तो हम इन्हें पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं कहते हैं। इसे इस प्रकार समझा जा सकता है: एक जंगल स्वाभाविक रूप से पानी को छानता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है और जानवरों के लिए आवास प्रदान करता है। ये पारिस्थितिकी तंत्र के कार्य हैं। जब हमें उस जंगल के कारण स्वच्छ जल, संरक्षित कृषि भूमि और परागित फसलों का लाभ मिलता है, तो हम प्रकृति से पारिस्थितिकी तंत्र सेवाएं प्राप्त कर रहे होते हैं। एक परिपक्व पेड़ प्रतिदिन लगभग 275 लीटर ऑक्सीजन का उत्पादन करता है। यह पेड़ के प्रकार के आधार पर थोड़ा भिन्न हो सकता है। एक मनुष्य को प्रतिदिन लगभग 350 लीटर ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। यह व्यक्ति द्वारा की जाने वाली गतिविधि के प्रकार, उसकी ऊंचाई और वजन आदि के आधार पर बदल सकता है। लेट्स एक्सप्लोर। आइए ढूंढते हैं। Take up a small research study to assess the types of renewable resources in your region. You may discuss with your teacher the geographical area of your study and sources to access information that you may need. What has been the change in their status over time? Make a small report that identifies the reasons for the change and what may be done. यह पैराग्राफ हमें कह रहा है कि अपने क्षेत्र में नवीकरणीय संसाधनों के प्रकारों का आकलन करने के लिए एक छोटा शोध अध्ययन करें। आप अपने शिक्षक से अपने अध्ययन के भौगोलिक क्षेत्र और आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के स्रोतों पर चर्चा कर सकते हैं। समय के साथ उनकी स्थिति में क्या परिवर्तन आया है? परिवर्तन के कारणों और संभावित उपायों को दर्शाते हुए एक संक्षिप्त रिपोर्ट तैयार करें। नॉन-रिन्यूएबल रिसोर्सेस, गैर-नवीकरणीय संसाधन। Non-renewable resources are created over long periods. They cannot be replenished at the rate we use them. For example, fossil fuels, coal and petroleum, and minerals and metals like iron, copper and gold are non-renewable resources. India has significant quantities of coal reserves.
We mine coal to meet our growing need for energy, but it has been estimated that the coal reserves in India may last another 50 years. The demand for electricity has been increasing as the population expands and development work accelerates. Till more sustainable options become available widely, we need to use the coal we have judiciously. यह पैराग्राफ हमें कह रहा है कि नवीकरणीय न होने वाले संसाधन लंबे समय में बनते हैं। जिस दर से हम इनका उपयोग करते हैं, उस दर से इनकी भरपाई नहीं हो सकती। उदाहरण के लिए जीवाश्म ईंधन, कोयला और पेट्रोलियम और खनिज और धातुएं जैसे लोहा, तांबा और सोना नवीकरणीय न होने वाले संसाधन हैं। भारत में कोयले के पर्याप्त भंडार हैं। हम ऊर्जा की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने के लिए कोयले का खनन करते हैं, लेकिन अनुमान है कि भारत में कोयले के भंडार केवल 50 वर्षों तक ही चल पाएंगे। जनसंख्या वृद्धि और विकास कार्यों की गति बढ़ने के साथ बिजली की मांग भी बढ़ रही है। जब तक अधिक टिकाऊ विकल्प व्यापक रूप से उपलब्ध नहीं हो जाते, तब तक हमें अपने पास मौजूद कोयले का विवेकपूर्ण उपयोग करना होगा। लेट्स एक्सप्लोर। आइए ढूंढते हैं। What are the non-renewable resources that you use daily, directly or indirectly? What are the possible renewable substitutes? What are some of the steps we can take to transition to renewables? यह पैराग्राफ हमें कह रहा है कि आप प्रतिदिन किन गैर-नवीकरणीय संसाधनों का उपयोग करते हैं, चाहे वे प्रत्यक्ष रूप से हो या अप्रत्यक्ष रूप से। इनके संभावित नवीकरणीय विकल्प क्या हैं? नवीकरणीय ऊर्जा की ओर संक्रमण के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एंड इट्स इम्प्लीकेशंस। प्राकृतिक संसाधनों का वितरण और इसके निहितार्थ। Natural resources are not evenly distributed across our planet or even within countries. This uneven distribution shapes human settlements, trade patterns, international relations, and conflicts too. Many wars have been fought, and continue to be fought, to gain control over natural resources. यह पैराग्राफ हमें बता रहा है कि प्राकृतिक संसाधन हमारे ग्रह पर या यहाँ तक कि देशों के भीतर भी समान रूप से वितरित नहीं हैं। यह असमान वितरण मानव बस्तियों, व्यापारिक तौर तरीकों, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों और संघर्षों को भी प्रभावित करता है। प्राकृतिक संसाधनों पर नियंत्रण पाने के लिए अनेक युद्ध लड़े गए हैं और अभी भी लड़े जा रहे हैं। लेट्स एक्सप्लोर। आइए ढूंढते हैं। Observe the map in Fig.1.11. Notice the uneven distribution of important minerals. What types of resources are available in your region? How are they distributed? इस पैराग्राफ का मतलब है कि चित्र 1.11 में दिए गए मानचित्र को ध्यान से देखें। महत्वपूर्ण खनिजों के असमान वितरण पर ध्यान दें। आपके क्षेत्र में किस प्रकार के संसाधन उपलब्ध हैं? उनका वितरण कैसा है? Industries located near natural resources create employment opportunities for the local people. Townships grow around them and expand economic opportunities for others too. More modern facilities that improve the quality of life become accessible. However, these benefits are often accompanied by costs, in the short term as well as in the long term. We have examples from across the world of people living in resource-rich areas who have been displaced from their homes to facilitate such developments. In some cases, their sacred places are under threat, leading to conflicts. National and international trade depend on the geographical location of natural resources. Combined with human knowledge and skills, these can create unique products like the wood steel.
As we know, trade fueled the development of large empires in India. इस पैराग्राफ का मतलब है कि प्राकृतिक संसाधनों के निकट स्थित उद्योग स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करते हैं। इनके आसपास बस्तियां विकसित होती हैं और अन्य लोगों के लिए भी आर्थिक अवसर बढ़ते हैं। जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाने वाली अधिक आधुनिक सुविधाएं सुलभ हो जाती हैं। हालांकि इन लाभों के साथ अक्सर अल्पकालिक और दीर्घकालिक दोनों तरह की लागतें भी जुड़ी होती हैं। दुनिया भर में ऐसे उदाहरण मौजूद हैं जहां संसाधन समृद्ध क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ऐसे उद्योगों को चलाने के लिए अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा है। घटनाक्रमों के चलते कुछ मामलों में उनके पवित्र स्थल खतरे में हैं, जिससे संघर्ष उत्पन्न हो रहे हैं। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्राकृतिक संसाधनों की भौगोलिक स्थिति पर निर्भर करता है। मानवीय ज्ञान और कौशल के साथ मिलकर ये वुड्स स्टील जैसे अद्वितीय उत्पाद बना सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं, व्यापार ने भारत में बड़े साम्राज्यों के विकास को गति प्रदान की। लेट्स एक्सप्लोर। आइए ढूंढते हैं। Select any two natural resources. Gather information about their availability across different parts of India. Mark them on a map. What do you observe about their distribution? What are the types of economic activities connected with them? Discuss the implications of extracting the natural resources in those parts for current and future generations. Suggest ways in which we can use nature's gifts in responsible ways. इस पैराग्राफ का मतलब है कि किन्हीं दो प्राकृतिक संसाधनों का चयन करें। भारत के विभिन्न भागों में उनकी उपलब्धता के बारे में जानकारी एकत्र करें। उन्हें मानचित्र पर अंकित करें। उनके वितरण के बारे में आप क्या देखते हैं? उनसे जुड़ी आर्थिक गतिविधियां किस प्रकार की हैं? उन क्षेत्रों में प्राकृतिक संसाधनों के दोहन के वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों पर पड़ने वाले प्रभावों पर चर्चा करें। प्रकृति के उपहारों का जिम्मेदारीपूर्ण उपयोग करने के तरीके सुझाएं। नेचर डज नॉट पे अटेंशन टू पॉलिटिकल बाउंड्रीज। दिस लीड्स टू टेंशंस रिगार्डिंग द शेयरिंग ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज अक्रॉस स्टेट्स एज वेल एज कंट्रीज। One example is the sharing of Kaveri River water among Karnataka, Tamil Nadu, Kerala and Puducherry. Negotiations and deft management were required to maintain peace and fair sharing. Of course, reaching such agreements between neighboring countries is not easy. इस पैराग्राफ का मतलब है कि प्रकृति राजनीतिक सीमाओं का ध्यान नहीं रखती। इसी कारण राज्यों और देशों के बीच प्राकृतिक संसाधनों के बंटवारे को लेकर तनाव उत्पन्न होता है। इसका एक उदाहरण कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के बीच कावेरी नदी के जल का बंटवारा है। शांति और उचित बंटवारे को बनाए रखने के लिए बातचीत और कुशल प्रबंधन की आवश्यकता पड़ी। बेशक, पड़ोसी देशों के बीच ऐसे समझौते करना आसान नहीं है। लेट्स एक्सप्लोर। आइए ढूंढते हैं। फाइंड आउट अबाउट सच अ कॉन्फ्लिक्ट इन द इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। डिस्कस योर फाइंडिंग्स इन द क्लास। यह पैराग्राफ हेन समझा रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में ऐसे किसी संघर्ष के बारे में जानकारी प्राप्त करें। अपनी खोजों पर कक्षा में चर्चा करें।